Anyways. So what we were saying is we can just don't need this, okay? Okay, today we go for the linked list, right? Code template, C++, C template. Okay. What we were technically saying is, hopefully it's here. We are saying we need to create a linked list. So if you want to create a linked list, what you're going to do is you need to first have a start pointer. The start pointer will store the address of the first node. So that means if it stores the address of the first node, its start has to be data type same. जिसका ये node बना है. The data type of the node has to be the data type of the start, right? So its job in the first moment will be null. That means linked list is empty. Now, if you want to create a linked list, for that we will have a function called getNode. Okay, which will create this node with the data part and the link part, and also drop into the data some data. We'll ask the users, give me some data, and drop it into the data part. Say 44 entered, and the link part it will drop the null, the get node. Okay, and whatever the address of this node is, okay, my favorite 2424 will go nowhere. It will just return that. It will just, and it is your job to catch it and drop it exact position. If it's the first node, it has to be, this address has to be in the start, 2424. So it's pointing to this node. And this has a null. Next time you come in, you see the start is not null. That means there are nodes. Now the nodes can be single or multiple or any many nodes. Our job is to find that null. The guy which has a null in the link part will be the last. So this is just, we are just creating the nodes in the end. Later there will be cases to end the to add the node in the beginning, to add the node in the specified position, to add the node at the end. This is simple linked list program where we create and add the nodes at the end. Okay, just to understand firstly the flow, then we create the different functions, and accordingly, whatever the question comes, you can answer that. Okay, so you have a start null, means it's empty. If it start is something, there is some nodes are there. Now, if there are many nodes, still start will have something, the first node address. So having in start not null doesn't mean there is only single node. It could be single, it could be many nodes. Our job is to find this link part where is a null. So that means we have to reach there where there is null. So for example, some pointer P is pointing to this node whose P arrow, now P arrow link is null, right? P arrow link is null. Arrow you understand, right? वो देखा वीडियो क्यों? Asterisk and dot का मिलके arrow. P arrow link is null, we stop it. We stop there. If P arrow, where the P arrow link is null, we stop it here. Now, the get node will, again I call the get node. It will do what? It will create a node. It will put the data part in it, and in link part it will put null and return its address. For this address 555, it returns that. I will cache that and put it into P arrow link. Okay, so that means the new node will be here, wherever it is. Its address was 5555. P arrow link will have 5555. That means pointing to this. And here we have null done with the get node and data part here. Again, you come and want to do some node. You again see start. No, oh, start. It doesn't have a null. That means there are nodes. Now, how many nodes? I don't care. I have to go to the end. How I go to the end? I traverse from the start up to wherever I have a link. So no questions how I traverse. How I traverse to this null. I will say for that P, that this P, the pointer P also has to be same type as that of start. Same type as that of these nodes. Okay, struct node, asterisk, because it's a pointer. Now P, I will say P equals to start. P equals to, what is start having? No, I have two nodes now, na? The start is having 2424. What is the 2424? It's the address of the first node. So if I say P is equal to start, what does that mean? That P is also pointing to this location. And there will be condition. Okay, P arrow link not equal to null. Not equal to
पी एरो लिंक नॉट इक्वल टू नल, पी एरो लिंक नल नहीं है। क्या पी एरो लिंक नल नहीं है? मत है, नहीं है ना, पी एरो लिंक में एड्रेस है इस बंदे का। तो उस सूरत में मुझे करना चाहिए, आगे चलाना चाहिए पी को, पी शुड पॉइंट टू दिस। हाउ आई विल, कैन यू टेल मी हाउ आई विल मूव द पी हियर? I cannot say p plus plus. This is not array, because in array I know it was a contiguous. The next node was adjacent to my first node. If I do plus plus, I go to this address, but I don't know where it is now. I need to put that address, that node's address, into this p. देखो पहले मेरी बात सुनो, फिर आंसर करो, then you can answer. मुझे p में डालना चाहिए ये वाला एड्रेस, लेकिन हूँ किधर? मैं हूँ इधर, मैं इस नोड के साथ, मैं इस नोड को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इसका डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, इसका लिंक एक्सेस कर सकता हूँ, है कि नहीं? मैं इसका डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, इसका लिंक एक्सेस कर सकता हूं मैं। ओके, बट हाउ टू गेट द पेन बैक? विच वन इज द पेन? इज इट ड्रॉ? नो, इज इट ड्रॉ? पेन कहां पर है? It's marks, I don't know. I close it, open again. Yeah, now by this में पेन किधर है? Anyways, leave it. Now this 555 is here. There is some data part, okay, whatever the data is, but p is here right now because I said p is equal start. So p is belonging to the, p is having same address, that is 2424, that is p is pointing to this node. Using p I can access its data, p arrow data and p arrow link. And in fact p arrow link is actually the address of the next node. That should now be in the p. Beautiful. P equals to p arrow link. This is the way we use the p plus plus there. Here we do p is equal to p arrow link. क्योंकि पहले p में था 2424, इसकी वजह से, है ना, क्योंकि स्टार्ट में 2424 था पहले ब्लॉक का एड्रेस, दैट वेंट इनटू द p. नाउ आई एम सेइंग p इक्वल्स टू, p में अपडेट करो, p arrow link. व्हाट इज p arrow link? दैट इज 5555. नाउ व्हाट विल बी इन द p? 5555. दैट इज p is no more pointing to this, p is pointing to this guy. Again I will say this condition again goes on, and it says, because this is empty, for loop is, I don't have to do anything, I just want to make p to that, I want to traverse this p to the last node. Okay, inside I have nothing, I just want to go. So I will say, is p arrow link not equal to null? If p arrow link is not equal to null, it is true, then it will do this thing, right? And it will move on, it will next iteration. But p arrow link is this time now, it will stop. So p will stop to the last node. Okay, so where is p now? Last node. So I can say p equals to get node. Should I say p is equal to get node? Should I say p is equal to get node? Think about it. क्योंकि मुझे जो नया नोड लाना है, देखिए जो नया नोड है ये, इसके बाद नया गेट नोड तो नया नोड करेगा क्रिएट, गेट नोड क्रिएट अ नोड, इट विल पुट नल इन द लिंक पार्ट एंड डेटा इन द डेटा पार्ट, और इसका कुछ एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल 666. ये 666 मुझे p में डालना है या इसके लिंक पार्ट में डालना है? p में नहीं डालना मुझे, p फिर तो p घूम ही जाएगा, p इसको पॉइंट कर रहा था, अगर मैं इसमें डालूंगा, उसमें नहीं डालना मुझे p में। इस वक्त ये है बंदा, मुझे इस लिंक पार्ट में डालूंगा, इसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा? सो मुझे p नहीं कहना है, p arrow link is equal to get node. So that means p arrow link इसमें डालो जनाब get node, this 666. तो get node क्या करेगा काम? वो नोड बनाएगा malloc से, उसके नल में नल, लिंक में नल डालेगा, डेटा में डेटा डालेगा, और जो एड्रेस होगा वो रिटर्न करेगा. अब वो कहाँ पकड़ेंगे हम? वो डालेंगे हम यहाँ p arrow link में, वो करेंगे ना एड्रेस क्रिएट यूजिंग द malloc, फिर हम उसको रिटर्न करेंगे ना, गेट नोड में रिटर्न करेंगे वो एड्रेस, ठीक है, वो एड्रेस हम फेंकेंगे वापस. अब आपका काम है कि वो किधर डालोगे आप. अगर आपने p में डाला तो दिस विल हैव नल इन इट, द p विल पॉइंट टू दिस, ये लिंक नहीं हो जाएगी. समझ में आ रही है? क्लियर? लेट्स ट्राई आवर हैंड्स ऑन इट नाउ. अपने दिमाग से बोलना, ठीक है, गोटा नहीं करना कोई चीज, अपने दिमाग से बोलना. अगर समझ नहीं आता मुझे रोकना. ओके,
I have struct node I said, huh? Struct node. एक इसमें int data part है, yeah, int data, और एक important part है, वो कौन है? That is of set type struct node, but it's a pointer. It's a pointer link, right? दो parts है, एक data part है, link part है, हो गया? And here should be a terminator. अब हम short करने के लिए क्या करते हैं इसको? alias करते हैं, create type def using type. अबे क्या कर रहा हूँ मैं? ये रेड नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब है कि टाइप डेफ और सिंगल लिंकर लिस्ट मैंने इसको कहा SLL. अब मुझे स्ट्रक्ट नोड करने की जरूरत नहीं है, आई कैन यूज SLL. ठीक है, मेरे पास एक गेट नोड होगी, मेरे पास क्या होगी? एक गेट नोड फंक्शन होगी, एक डिस्प्ले फंक्शन होगी जो कि दिखाएगी मुझे, है ना, और एक क्रिएट फंक्शन होगी. तो पहले गेट नोड करेंगे. क्या करेंगे? गेट नोड हमारा भाई है प्यारा सा, ये पता है हमें वो क्या करता है ना. वो लिंक में नल डालेगा, डेटा में डेटा डालेगा, पहले नोड खड़ा करेगा, फिर डेटा में डेटा, लिंक में लिंक, और उस लिंक को रिटर्न करेगा, है कि नहीं? ओके. तो मैं पहले एक वो स्टार्ट वाला पॉइंटर बनाता हूँ जिसमें ना हम रखने वाले हैं, वो ग्लोबल रखेंगे ताकि हर एक बंदे को, हर एक फंक्शन को एक्सेस हो. तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? उसका SLL. अब मुझे स्ट्रक्ट नोड करने की जरूरत नहीं है, बट विल इट बी एस्ट्रिक और नॉन एस्ट्रिक? It has to be pointer called start. इसमें क्या डालेंगे मैं? जो साग बोलते हैं, हाँ करना सुना साइज, कौन सुना साइज? The start is null. That means our linked list is empty. Okay, good. Now I will have a get node. I will have what? This is get node function, right? What I'm promising this will return. What will get node return? Address of what? The newly created node. It will return the address of the newly created node. So what should be the return type? What asterisk? But see, if I SLL, इसका रिटर्न टाइप वाइड नहीं होगा, ये रिटर्न करेगा, है ना. सो इसका रिटर्न टाइप होगा SLL asterisk. इसका रिटर्न टाइप होगा पॉइंटर, बिकॉज एड्रेस रिटर्न कर रहा हूं तो पॉइंटर रिटर्न होगा. और कौन सा? स्ट्रक्ट नोड टाइप. उसका एलिस SLL लिखा मैंने, एलिस, सो इट्स दैट, राइट? ठीक है ना, समझ आ रही है? हाँ जी. अब यहां पे मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैं फ्रेश, सेम टाइप का, जिसमें ना ये एड्रेस घुसेगा, फिर मैं वो रिटर्न करूंगा. सो मुझे अगर फ्रेश करना है, अगेन हैज टू बी लाइक दिस, व्हाट? SLL एस्ट्रिक फ्रेश. मैंने फ्रेश एक नोड बनाया, ठीक है. किसका बनाया मैंने फ्रेश नोड? स्ट्रक्ट नोड टाइप का, ठीक है. अब इस फ्रेश में मैं डालूंगा, कॉल करूंगा मेलॉक को. किसको करूंगा? MALLOC मेलॉक. ओके, साइज ऑफ, हाँ जी, साइज ऑफ किसका है ना. लेकिन मेलॉक मैंने कहा कि ये जो मेलॉक होता है ये हर एक के लिए होता है. सो आई नीड टाइप कास्ट. आई नीड टाइप कास्ट टू व्हाट? SLL asterisk, है ना. क्योंकि मेलॉक, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई साहब तू मुझे मेमोरी खड़ी कर दे, जितना ये स्ट्रक्चर है वो सारा, यानी कि उसमें दो चीजें होंगी, डेटा एंड लिंक. और उसके बाद को टाइप कास्ट भी कर, क्योंकि ये जो मेलॉक करेगा ये उसका डेटा टाइप नहीं रखेगा, ये खाली मेमोरी करेगा. लेकिन अब उसको बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप की मेमोरी है. तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि टाइप कास्ट कर रहा हूँ कि भाई साहब ये इस टाइप की मेमोरी है. और मेलॉक वो एड्रेस रिटर्न कर रहा है उस नोड का, इसने नोड खड़ा करके दिया, उसका डेटा टाइप हो गया यहाँ पे. और वो जो एड्रेस है उसका, वो किस में? अब पहला काम हम करते हैं कि हो सकता है कि फ्रेश बना ही नहीं, हो सकता है मेलॉक फेल हो गया, हो सकता है वहां जगह नहीं थी, हो सकता है ना. सो यहाँ पे मैं कहूंगा इफ नॉट फ्रेश. इफ नॉट फ्रेश का मतलब है, इन शॉर्ट, इफ फ्रेश इज इक्वल टू नल. अगर मेलॉक फेल हो गया तो ये नल पॉइंटर रिटर्न करेगा. इट विल रिटर्न द नल पॉइंटर, ठीक है. अदरवाइज इट विल रिटर्न वाइड पॉइंटर. malloc returns the white pointer. White pointer means it has no data type. That's why I typecasted it. But if it fails, it returns the null pointer. That means in the fresh there will be null.
If there is a null in a fresh, what does that mean? I printf error in memory allocation. भाई मेमोरी एलोकेशन में कुछ इशू आ गया और मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे एग्जिट करना चाहिए, और वो भी एरोनियस एग्जिट, एग्जिट 1 नॉट एग्जिट 0. एग्जिट 0 मींस सक्सेसफुल एग्जिट. आई शुड एग्जिट 1. ब्रेक सिर्फ लूप से बाहर निकलेगा, प्रोग्राम उधर ही है, एग्जाम प्रोग्राम ही खत्म करेगा. विल एंड द प्रोग्राम एंड रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. अब 1 आ गया तो एरोनियस रिजल्ट है, अगर 0 था तो सक्सेसफुल एग्जिट. अब चूंकि हमारे पास तो अक्सर इशू होते नहीं है, मेमोरी हमारे पास बहुत सारी है, हमें ये कभी होगा नहीं. ठीक है. अब अगर होगा नहीं तो मतलब उसका मतलब है कि फ्रेश बन गया. फ्रेश में क्या होगा? उसमें क्या होगा? उसमें वो होगा जो यहां से रिटर्न हुआ, जो इसने किया, उसने रिटर्न किया फ्रेश के अंदर. तो अब इसने क्या किया? इसने नोड खड़ा किया. इसने ये नोड जो था ये खड़ा किया, इसको मेमोरी दी इस चीज को. ठीक है. यानी कि इस चीज ने ये नोड बनाया जिसमें दो चीजें थी, डेटा और लिंक. और डेटा और लिंक ये दो चीजें इसने बनाई. किसने? मेलॉक ने. और इसका जो एड्रेस है 2424, दैट विल बी इन द फ्रेश. जो नए नोड का एड्रेस है दैट इज गोइंग टू बी इन अ फ्रेश. अब मुझे इसके डेटा में डेटा डालना है, लिंक में नल डालना है, लेकिन इस जो नया नोड है इसको कौन पॉइंट कर रहा है? फ्रेश पॉइंट कर रहा है. सो आई कैन एक्सेस, क्योंकि फ्रेश है ना यहाँ पे, सो आई कैन एक्सेस इट इज डेटा यूजिंग फ्रेश एंड इट्स लिंक यूजिंग. सो फर्स्टली आई विल आस्क द यूजर कि दे दो डेटा. ठीक है ना. I am saying here user printf \n enter data into the, भाई साहब नोड के अंदर आप डेटा दे दो. ठीक है. एंड आई स्कैन इट, स्कैन एफ, क्योंकि इंटीजर है डेटा, परसेंट डी डबल को क्लोज कामा एम्परसेंट. किसमें डालूंगा मैं? कैसे एक्सेस कर सकते डेटा? एसएल कहां से आ गए यहाँ? मुझे नोड के डेटा पार्ट में डेटा डालना है, उसको मैं कैसे एक्सेस करूँ? नोड के डेटा में डालना है ना डेटा, और लिंक में नल डालना है. किया ना, पहले क्रिएट है तो फ्रेश है ना भाई साहब उस नोड को. एग्जैक्टली. फ्रेश एरो डेटा, बिकॉज फ्रेश है ना जो पॉइंट कर रहा है नोड को. आपका दिमाग इधर है. ये जो मेलॉक है यहाँ पे, इसने नोड खड़ा कर दिया, उसका डेटा टाइप कर दिया, उसका रिटर्न किया एड्रेस, वो किसमें है? अब फ्रेश पॉइंट करना है नोड को, तो जो भी आपको नोड को करना है वो फ्रेश से करो. सो अगर यहाँ पे डेटा डालना है, हम किस में डालेंगे? फ्रेश एरो. हाँ, उसमें डेटा खत्म, मामला हो गया. और किस में डालूंगा? Very good. Brush arrow link. Nice. Equals to null. That's it. Is it that's it, or I do something more? I should do one thing more. नहीं नहीं, वो तो बाद की बात है. गेट नोड का ये काम नहीं है. गेट नोड नोड खड़ा करके देगा, उसके डेटा में डेटा डालेगा, लिंक में नल डालेगा, और उस एड्रेस को क्या करेगा? रिटर्न. इसको रिटर्न करना पड़ेगा. इसलिए तो मैंने यहाँ पे कहा कि जो गेट नोड मैंने बनाया उसका मैंने रिटर्न टाइप क्या लिखा है ना. दिस इज आवर गेट नोड फंक्शन. सो रिटर्न तो करना पड़ेगा ना फिर मैं यहाँ पे. तो किसको करूंगा रिटर्न में? रिटर्न क्या करना है मुझे? गेट नोड क्या करेगा रिटर्न? फ्रेश, उस नोड का एड्रेस. वो किसके पास है? फ्रेश के पास. तो रिटर्न फ्रेश. तो गेट नोड ने कितने काम किए यहाँ पे? पहले उसने नोड खड़ा करके दिया मेलॉक से डायनेमिकली.
तो जब मैं इसको कॉल करूंगा तब जाके नोड बनेगा, जब मेरी मर्जी होगी तब बनाऊंगा, स्टैटिक कुछ नहीं है। वो उस नोड का एड्रेस किसके पास फिलहाल है। अब मैंने देखा कि फ्रेश है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसका मतलब है कि एरर आ गया, अगर है, अगर इफ इसमें अगर इफ ये होगा तो एग्जिट करेगा ना, सारा प्रोग्राम ही खत्म। अगर ये नहीं होगा ट्रू तब जाके यहाँ आएगा, पहले डेटा पार्ट में डेटा डालेगा और लिंक पार्ट में क्या डालेगा, नल। ये डेटा और लिंक जो है ये किसका पार्ट है, उस नोड का, उस नोड का। एंड फ्रेश इज पॉइंट टू दैट, नो नोड का, फ्रेश इज ओनली पॉइंटिंग टू दैट। ओके, फ्रेश इज यानी कि फ्रेश इज द एड्रेस ऑफ दैट नोड, क्योंकि वो जो एड्रेस इस मेलॉक ने फेंका था वो फ्रेश में पकड़ा हमने, और उसी एड्रेस को मैंने रिटर्न किया। ठीक है, यहां जब मैं मेन में आ जाऊंगा ना, मेन के अंदर मैं सिंपली क्या काम करूंगा, मैं क्रिएट को कॉल करूंगा। किसको, एक क्रिएट फंक्शन होगी उसको कॉल करूंगा, एक फंक्शन होगी प्रिंट, ओके, प्रिंट SLL सिंगल सिंगल लिंक्ड लिस्ट, इसको मैं कॉल मारूंगा, दैट्स इट। ठीक है, समझ आई। तो जब मैंने क्रिएट को कॉल करनी है तो यहाँ पे क्रिएट फंक्शन भी होगी ना, यहाँ क्या होगी अब, ये फिलहाल गेट नोड थी मेरी फंक्शन ये वाली, और यहाँ पे गेट नोड खत्म। ये आपकी मर्जी है, अगर आप बाद में लिखोगे फिर प्रोटोटाइप लिखने हैं, अगर आप ये इसको वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसको उठा के, ये गेट नोड है ना यहाँ से, आप अगर मेन को ऊपर लिखना चाहते हो जैसे हम लिखते थे Ctrl X, फिर आप नीचे लिखें, मगर अगर मेन के बाद आपने लिखा नहीं कि कॉल के बाद आप लिखोगे तो फिर प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा, यहाँ इतना आपको करना पड़ेगा। सो प्रोटोटाइप विल बी सेम एज दैट ऑफ दिस थिंग। ठीक है ना, ये आपकी मर्जी है, आप कहाँ लिखोगे, फिर प्रोटोटाइप लिखो, फिर जिधर मर्जी है उधर लिखो। ठीक है, ओके। तो अब मेन के अंदर इसने क्या किया, अब क्रिएट, हम क्रिएट को कॉल करेंगे, किसको करेंगे कॉल, क्रिएट को कॉल करेंगे मैं। ठीक, ये क्रिएट फंक्शन है, ये रिटर्न कुछ नहीं करेगी, दिस विल बी void। ओके, यहां हम यूजर को पूछेंगे कि आपको नोट करना है क्रिएट या नहीं करना। ठीक है, और बार बार जब तक वो यस बोलता है तब तक करते जाएंगे, इसलिए हमें कैरेक्टर एक चॉइस होगी CH। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्योंकि स्टार्ट तो ऊपर है ही, है ना, क्लास स्टार्ट में डाल डालेंगे, मगर हो सकता है कि मुझे आगे चलना पड़ेगा तो P जरूरत पड़ेगा मुझे, वो P ना, कौन सा, जो ना आगे चलेगा अगर ना मल्टीपल नोड्स है, तो उसके लिए मैं करूंगा SLL टाइप *P, एक पॉइंट टेम्पररी पॉइंट। तो मुझे क्रिएट को कॉल हो गई, मुझे क्या देखना पड़ेगा पहली बार, अगर मैं क्रिएट में आ गया पहली बार मुझे क्या देखना पड़ेगा, यहां से क्रिएट में कॉल आ गई मेन से, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो वो कैसे पता चले लिस्ट एम्प्टी है नहीं, इफ फ्रेश, इधर कुछ नहीं है, फ्रेश यहाँ पे है ही नहीं, फ्रेश किस में है, वो गेट नोड के अंदर है, जो फ्रेश आपका है वो इस गेट नोड के अंदर है। जो ही गेट नोड फंक्शन कॉल होगी फ्रेश का जन्म होगा, गेट नोड फंक्शन क्लोज, दैट विल बी किल्ड, देयर विल बी नो फ्रेश आउटसाइड दिस। सो फ्रेश यहाँ पे पहचाना नहीं जाएगा, लेकिन स्टार्ट मैंने ग्लोबल रखा है ना, पहली बार स्टार्ट में क्या होगा, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, हाँ है पहली बार नल, तो अगर स्टार्ट नल है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एम्प्टी नहीं, मुझे क्रिएट करना है ना नोड, मैं नहीं डिस्प्ले कर रहा हूँ अभी, वो तो हो गया डिस्प्ले के वक्त, वो गया डिस्प्ले के वक्त सोचूंगा कि अगर स्टार्ट एम्प्टी है तो, अगर स्टार्ट में नल है तो एम्प्टी है, मैं मैसेज करूंगा भाई लिंक लिंक एम्प्टी है, डिस्प्ले क्या करूंगा। यहाँ मुझे क्रिएट करना है ना, तो पहला नोड बनाना है मुझे, उसका एड्रेस कहाँ डालना है, स्टार्ट में, पहले नोड का एड्रेस डलेगा कहाँ पे, कंफ्यूज नहीं हो, देखो ये स्टार्ट है, पहली बार ये नल था, अब आप कह रहे हो क्रिएट नोड करना है, क्रिएट तो करो नोड क्रिएट, उसके डेटा में डेटा डालो और लिंक में नल डालो, वो कौन करेगा, गेट नोड, और जो ये एड्रेस इसका होगा 2424 वो कहाँ डालना है, स्टार्ट में डालना। तो यहां मुझे उसी की टेंशन है, मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है कि इसको डेटा डालना है, इसको लिंक करना है, वो चीजें वो गेट नोड करेगा, वो काम मैंने किया, उसके लिए मैं गेट नोड को कॉल मारूंगा, मुझे करके देगा।
यहाँ मेरी टेंशन ये है कि मैं वो जो गेट नोड एड्रेस वापस फेंकेगा फ्रेश, जो फ्रेश उसने वापस फेंका एड्रेस, वो किधर डालूं मैं? अभी अभी जाके मेरे को स्टार्ट में डालने का है ना। आई हैव टू ड्रॉप इट इन स्टार्ट बिकॉज़ स्टार्ट इज दिस इज एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट। आई नीड टू ड्रॉप इट इन अ स्टार्ट। डज इट मेक सेंस और नॉट? सो बताओ फिर क्या करूं मैं? अगर स्टार्ट मतलब क्या करना चाहिए? एड्रेस नोड कौन करके करेगा क्रिएट? वो कौन करेगा क्रिएट? हो कहाँ गया? वो ये करेगा क्रिएट। इसको तो कॉल किसी ने कोई कॉल तो करे इसको यार। मैं तैयार हूँ दावत खाने के लिए, लेकिन बुलाए तो कोई पहले। बुला ही नहीं रहे हो। तो गेट नोट तैयार है सारा, लेकिन उसको बुलाओ तो कहीं कहीं से। कॉल तो मारो ना। तो कॉल कहाँ से मारोगे आप? यहीं पे मारोगे ना कॉल। कहाँ पे, कहाँ गए हमारा? हाँ, ये है ना ये। अगर स्टार्ट नल है तो भाई साहब मैं गेट नोड को कॉल मारूंगा। ठीक है, गेट नोड जब मैं कॉल मारूंगा, वो सारे वो काम करेगा। वो नोड खड़ा करके देगा, डेटा पार्ट में डेटा डालेगा, लिंक पार्ट में नल डालेगा, और रिटर्न करेगा एड्रेस। मेरे को कैश नहीं करना। तो गेट नोड जो ही मैं कॉल करूंगा वो एड्रेस फेंक रहा है वापस उस नोड का। तो वो मैं किस में पकड़ूंगा अभी? सो आई शुड से हियर स्टार्ट इक्वल्स टू गेट नोड। क्यों? क्योंकि स्टार्ट नल है, लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो पहला नोड कितने जाएगा पाजी? स्टार्ट में जाएगा। ठीक है ना। तो दैट इज स्टार्ट टू गेट नोड। गेट नोड ने क्या किया? नहीं नहीं, सारे काम बताओ क्या करेगा? एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है ना, वो फ्रेश में था उधर, वो रिटर्न हो गया। जो ही वो रिटर्न हो गया, गेट नोड यहाँ पे, गेट नोड मैंने कॉल की, ये वापस फेंक रहा है। और मैंने इसको यहाँ पे स्टार्ट पकड़ लिया। ठीक है, ये मानो गेट नोड फंक्शन है, ये वापस फेंक रहा है वो एड्रेस। वो डालूंगा किसमें? कैश तो करेगा ना। जब कोई फंक्शन रिटर्न करती है तो उसके लेफ्ट में कोई बंदा होना चाहिए जो पकड़ेगा वो चीज जो रिटर्न करती है। फिलहाल उसने रिटर्न किया एड्रेस नोड का, तो मैंने उसी के नोड के टाइप का स्टार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट पकड़ेगा। लेकिन ये तो हो गया पहली बार। ठीक है, हो सकता है कि यूजर क्या करे काम, वो फिर से बोले कि ना जी ना, मेरे को और चाहिए। हम रिकर्सिवली कॉल कर सकते हैं उसको, बाद में देखूंगा मैं। हो सकता है इसने बोला है मैं और, मतलब स्टार्ट नहीं था जब इसको क्रिएट को कॉल हो गई, तो स्टार्ट में नल नहीं था। तो नोड बन चुका है। कितने नोड बन चुके हैं पता नहीं। मेरा काम कहाँ पे पहुंचने का है? नल के पास। इसीलिए मैंने पी बनाया। इसलिए क्या बनाया मैंने? तो अब चूंकि इसमें एक ही स्टेटमेंट है, तो इसको इफ को ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर पी को शुरू करूंगा कहां से? स्टार्ट से, मीन्स पहले नोड से। कहां तक जाना चाहिए? पी एरो, पी एरो लिंक नॉट इक्वल टू। जनाब अगर पी एरो लिंक नल नहीं है तो पी को आगे चलाओ। कैसे चलाऊंगा? एग्जैक्टली exactly. ठीक है ना। और फॉर लूप में कुछ रखना है मैं? ये एम्प्टी फॉर लूप है ना, मुझे इसके अंदर कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये एम्प्टी फॉर लूप है, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ पी को कहाँ चलाना है? सिर्फ आगे 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 पी पहुंचना चाहिए। इसलिए इस सूरत में हम क्या करते हैं काम, हम इसमें ब्रेसेस नहीं लगते बल्कि टर्मिनेटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इस फॉर लूप को लास्ट में टर्मिनेटर लगाते हैं, क्योंकि हमारा काम है कि ये खटाक से पी जाना चाहिए किधर? एंड पे। जितने भी नोड है, मतलब 1 2 3 4 5 नोड है, पर मतलब पी पहले स्टार्ट में लग गया। स्टार्ट पहला नोड है, उसके साथ लग गया। तो देख रहा है क्या तेरे पास नाला है? कहता नहीं है। इसका मतलब आगे भी नोड है। पी इज इक्वल पी एरो लिंक, क्योंकि पी एरो लिंक में छुपा है इसका एड्रेस दूसरे बंदे का, है ना। तो ये जाएगा इसके पास। क्या पी एरो लिंक में नल है? ना है जी। उसके मतलब उसके बाद भी नोड है। तो उस नोड का एड्रेस किसके पास है? पी एरो लिंक में। पी इज इक्वल पी एरो लिंक, पी इसके पास है। पी एरो लिंक, क्या तेरे पास नल है? हाँ है। रुक। तो रुक। अब इसके लिंक में जिसको पी पॉइंट कर रहा है, उसके लिंक में मुझे नए नोड का एड्रेस डालना है। नोड भी क्रिएट करना है, उसका एड्रेस भी डालना है उधर ही। नोड क्रिएट करेगा कौन? तो मैं गेट नोड चाचू को फिर से बुलाऊंगा, तकलीफ दूंगा मैं गेट नोड। चाचू जी आइए। गेट नोड जी आ गया। उसने नोड खड़ा कर दिया, डेढ़ में डेढ़, लिंक में लिंक, और एड्रेस फेंक रहा है। किस में डालूं? पी में ना जी, फिर से वही गलती।
एग्जैक्टली पी उस नोड को पॉइंट कर रहा है, ये वो नोड है जिसको पी पॉइंट कर रहा है। पी के लिंक में नल है इसलिए रुक गया था यहाँ पे, है ना। अब जो ये इसकी लिंक पार्ट है उसमें मेरे को एड्रेस डालना जो नया नोड बन रहा है ना। तो पी में अगर पी में डालेगा ना तो पी पॉइंट करेगा इस नए नोड को, ये इससे लिंक नहीं होगा। तो आई शुड पुट वेयर, सो आई शुड से पी एरो। आपको नहीं समझ आ रहा, अब बताओ कहाँ पे बताओ। एक एक सेकंड, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ आपको। ये स्टार्ट है मेरा, उसमें पहले नोड का एड्रेस है। अगर हम यहाँ पे आ गए उसका मतलब है कि नल नहीं है, तो ये वाली चीज चलेगी नहीं, ये वाली चीज चलेगी नहीं, ये तो पहली बार चलेगी खाली। तो उसका मतलब यहाँ आएगा ये, तो जनाब स्टार्ट में मतलब इसका एड्रेस 2 है, वो यहाँ पर है, ठीक है। ये एक और एड्रेस बनाया था हमने, फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस 3 है, तो वो कहाँ पे होगा, इसकी लिंक में, इसमें नल है। अब जो नया नोड बनेगा वो इधर बनना चाहिए ना, उसका एड्रेस 4 है, वो किधर डलना चाहिए, यहाँ पे डलना चाहिए ना। तो मुझे तो पहले पहुंचना है ना इसके पास। मैं कह रहा हूँ पी इज इक्वल स्टार्ट, स्टार्ट में क्या है, 2 किसका एड्रेस है, इसका, दैट मींस पी लग गया इसके साथ। क्या पी एरो लिंक, ये वाला देखो, पी एरो लिंक, पी इज इक्वल स्टार्ट हो गया, पी एरो लिंक, क्या पी एरो, ये दिख रहा है ठीक साफ ऊपर, पी एरो लिंक, क्या पी एरो लिंक नल है, नहीं है, वहां 3 छुपा है, उसका मतलब है भाई साहब और नोड है। तो इसलिए मैं कहूंगा P इक्वल्स टू पी एरो लिंक। P में आप डाले पी एरो लिंक, पी एरो लिंक इज 3, वो 3 उठाओ P में डालो। जब P में 3 है तो आप P पॉइंट कर रहे हैं 2 को, नहीं, अब P किसको पॉइंट कर रहे हैं, इसको, 3 को। क्या P एरो लिंक नल है, हाँ है, रुक, टर्मिनेटर है ना वहां पे, ये खटाक से P को ले जाएगा लास्ट नोड पे, जितने भी नोड होंगे। तो P अब बैठा है इस नोड के पास, ठीक है ना। अब जो नया नोड बनेगा उसका एड्रेस किस में डालना है, इसमें। इसको कैसे मैं एक्सेस करूंगा इस चीज को, पी एरो लिंक से, क्योंकि पी बैठा है ना इसके पास। अगर मुझे इसके डेटा में कुछ डालना, मैं कह सकता हूँ पी एरो डेटा, मानो मैंने मुझे ये प्रिंट करना है, ये लिंक लिस्ट, मैं पी एरो डेटा को प्रिंट करूंगा इस तरीके से। यहां मुझे पी एरो लिंक में, पी एरो, जो पी एरो लिंक है दैट मीन दिस पार्ट, उसमें आप नए नोड का एड्रेस यानी कि 4 डालो। वो नया नोड का एड्रेस आपका गेट नोड करके देगा, जो भी वो एड्रेस होगा वो पी एरो लिंक में होगा, क्योंकि पी वहां पहुंचा होगा जो कि लास्ट नोड है। फिर से समझाऊं, श्योर, I can teach again, not problem। तो समझ गया, मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है ना, हो गया जी। अब यहाँ पे तो काम हमारा हो गया, अब पहली बार भी हो गया, आखिरी बार भी हो गया, लेकिन अब यूजर को पूछना है कि समाशी बेनोड करो नेट, समाशी, ओके, फॉर दैट व्हाट शुड आई से, आई शुड प्रिंट एफ, नहीं सिंपल प्रिंट एफ दूंगा, प्रिंट एफ होता है ना, मैं कहूंगा \n, damn it, press y to continue। मैंने क्या रखा है CHSO, यू कैन क्रिएट इंट, मगर बेटर है कि यस नो बोलना, y, ओके, प्रेस y टू कंटिन्यू। तो स्कैनफ ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि एक इसमें परेशानी होती है, पर्सन सी भाई साहब, क्योंकि ये कैरेक्टर है, हाँ, $ch, जो कैरेक्टर होता है ना सिर्फ एक कैरेक्टर, उसमें पंगा होता है, कीबोर्ड में ऑलरेडी चीजें होती हैं हमने डाली हुई होती है, जैसे हम कुछ कर रहे थे कीबोर्ड में है, तो वो कंफ्यूज कर जाता है। इसलिए हमेशा एक कैरेक्टर जब हम स्कैन करेंगे ना, उससे पहले कीबोर्ड बफर को साफ करें, ओके। तो उस कैसे होता है, f_stdin, लगता है आपने कुछ पढ़ा नहीं है इसमें सी में, क्योंकि आपको सारा ही नया दिख रहा है, ये तो पता ही होता है ना ये चीजें सी के अंदर। f_stdin से क्या हो जाता है, कीबोर्ड बफर साफ हो जाएगा, ताकि एक सिंगल कैरेक्टर जब उधर जाएगा वो आराम से निकलेगा, है ना, क्योंकि एक सिंगल इंटीजर में प्रॉब्लम है, इंटीजर बड़ा होता है, कैरेक्टर एक सिंगल जो है वो कंफ्यूज हो जाता है फिर। कीबोर्ड बफर इसलिए हम साफ करते हैं ताकि हमें कुछ परेशानी ना हो, परफेक्ट एक कैरेक्टर आ जाए। और मैं देख रहा हूँ कि वैसा वो बॉय है, क्लियर स्क्रीन नहीं, क्लियर कीबोर्ड बफर मेमोरी, कीबोर्ड की मेमोरी जहां से ले रहा है, हाँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ काम, अब मैं मुझे देखना है कि इफ ch इज इक्वल टू कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में, हाँ, y
और आई कुड से और मे बी उसने उसने कैपिटल दे दिया, मे बी उसने क्या दिया, दिस इज नॉट और, पाइप साइन होता ना और सी एच इज इक्वल टू कैपिटल वाई। अगर कैरेक्टर ये सी एच जो है स्मॉल वाई है या सी एच क्या है कैपिटल वाई है, तो उस सूरत में आप क्या काम करोगे, अगर है तो आप क्रिएट को कॉल करो वापस, CREATE खुद को ही कॉल करो, फेल कर दो, या तो गो टू कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं वो फिर, या खुद को ही कॉल करो, रिकर्सिव कॉल मारो, अपने आप को कॉल मारो, उसके बाद तो कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो कोई परेशानी है नहीं। तो अगर CHY नहीं है, क्रिएट को कॉल होगा ही नहीं, ये बाहर निकलेगा, खेल खत्म। इसके बाद एक भी स्टेटमेंट नहीं है, आप देख सकते हो, आई डोंट हैव इवन अ सिंगल स्टेटमेंट यet। तो इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, दिस इज एंड ऑफ क्रिएट। ठीक है ना, इसका प्रोटोटाइप लिखा मैंने, वाइड क्रिएट है बस, इसमें कुछ मसला ही नहीं है, वाइड क्रिएट कंट्रोल C, प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, प्रोटोटाइप है। अब देखते हैं, इसको रन करते हैं, इसी में कितने एरर्स होंगे। हाँ, पहले इसका है SL एस्ट्रिक गेट नोड में एरर कुछ है, क्या एरर है, चलिए सेव करेंगे हम C में, हम सेव एज, फिर हम जाएंगे डेस्कटॉप पे, ये कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा है, डेस्कटॉप पे था ना वो, क्या नाम था, सीरा से बात था ना, ये रहा SLL.C। और फिर से रन करेंगे, अब देखते हैं क्या मसले हैं, इसे बता रहे हैं कुछ है? क्या बता रहे हैं, सिंटेक्स एरर बिफोर टोकन क्या था, मतलब यहाँ पे कौन सा टोकन है, malloc.h हमने किया, malloc.h पे हमें ऐड करना है ना, hash include malloc.h, और तो हमें कुछ करना नहीं है इसमें, गेट नोड है, इसका कुछ है नहीं, तो वाइड है, यहाँ पे है भी नहीं, इसमें तो वाइड है, इसमें एरर कहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी प्रोटोटाइप में इसको कह रहा हूँ SSL टाइप है, तो इसमें क्या मसला है, इसको SLL की बात करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कि इसको पहले दिखाते हैं ना कि SLL है क्या, क्योंकि इसको में भी ये पता नहीं होगा कि है क्या। हाँ, प्रिंट SLL मैंने किया नहीं अभी ना, प्रिंट नहीं किया ना हमने, प्रिंट करेंगे ना, अभी प्रिंट हमने किया नहीं, क्या बोल रहे हैं, इसको हुआ क्या, सेव क्यों नहीं कर रहा, कैन नॉट सेव फाइल, बस सेव करने को किसने बोला आपको, मैंने बोला ये करो F5, ठीक है, कोई इशू है नहीं इसमें, लेकिन जब तक हम प्रिंट नहीं करेंगे तो लोग पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम इसको फंक्शन को करेंगे अब, ठीक है, ये प्रिंट SLL फंक्शन जो हमारी हुई कंट्रोल C, इसको कहीं पे करेंगे हम, लेकिन ये आप मुझे बताओगे, कंट्रोल B, इट इज वाइड प्रिंट SLL, ठीक है ना, अब बताएं, पहले हम एक पॉइंटर करेंगे SLL एस्ट्रिक क्रिएट, पॉइंटर करेंगे क्रिएट, मोनो टेम्पररी पॉइंटर P, पहले P इक्वल टू कहां से लगाएंगे हम इसको, स्टार्ट के साथ, ठीक है ना, अगर P क्या है मेरा, ये बोलने की जरूरत नहीं है, फॉर लूप में करेंगे हम, है ना, हम सीधे यहाँ पे करेंगे, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, अगर हम पहले ही प्रिंट कर रहे हैं ना, बिना ये इसके, अगर कुछ है नहीं इसमें, तो मुझे क्या करना चाहिए, printf \n linked list is empty, है ना, है ही नहीं कुछ भाई साहब वहां पे, वरना else, इसका else, हाँ, else में मैं चलूंगा पहले स्टार्ट से, for
P इज इक्वल टू स्टार्ट। कब तक चलूंगा मैं? P, मगर मैं कहूंगा P नॉट इक्वल टू नल, नॉट P एरो लिंक। ये आप खुद वर्कआउट करोगे। अगर मैं P एरो लिंक बोलता हूं नॉट इक्वल टू नल, ये लास्ट का नोड प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट का नोड इन प्रिंट नहीं करेगा, इसलिए P नॉट इक्वल टू नल करना है। जब तक P नल नहीं हो जाता तब तक चलते जाओ और P में क्या डालते जाओ, P एरो लिंक। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को आगे नहीं चलाना है बल्कि प्रिंट करना है साथ साथ। P इज इक्वल स्टार्ट लग गया, अब डेटा इसका प्रिंट करना है, प्रिंट एफ प्रिंट एफ बैकस्लैश टी करता हूं मैं, परसेंट डी डबल क्लोज कामा P एरो डेटा। ठीक है ना, इसको प्रिंट करो, खेल खत्म। दैट्स इट। ठीक है, अब करेंगे इसको ना, प्रिंट को हम कॉल कर ही रहे हैं ना। प्रोटोटाइप लिखा मैंने, वाइड टाइप यस करके है ना, F5। ये क्या हुआ, ये इसका ये था ना, ये एल्स है, और अच्छा उसका नहीं है ना, ये इसका आ गया ना फॉर लूप का। मुझे ये करना ही नहीं चाहिए ना, ये किस लिए है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है ना इसी के साथ। ये इसका आ गया, वो फंक्शन का आ गया, हो गया खत्म। अरे क्या बोल रहा है, एंटर डेटा इनटू द नोड, फॉर एग्जांपल 12 कहता हूं मैं, एंटर डेटा इनटू द नोड, मगर ये तो हमें पूछ ही नहीं रहा। हमने कहीं पे बोला है वो प्रिंट मैसेज करवाई हमने कहीं पे, डू यू वांट टू कंटिन्यू कुछ किया हमने, यस सर नो। ये तो पकड़ रहा है भाई साहब, मगर दो बार क्यों पकड़ रहा है, इसने दो बार पकड़ा पहली बार। अब बोल रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, ऐसे ही यस, वाई टू कंटिन्यू, एंटर डेटा इनटू द नोड 56, प्रेस यस। ये काम क्या हो, वो हमने दो बार किया है, वो ना वो ये वो देखेंगे हम कहाँ के, बाकी कर रहे हैं ठीक है ना। एंटर डोट फॉर एग्जाम्पल 99, अब मैं कर रहा हूँ नहीं मुझे नहीं करना, तो 12 34 36, 12 34 56 99 किया, इसने प्रिंट भी किया परफेक्टली। लेकिन यहाँ पे ये दो बार कर रहे हैं, और क्लियर स्क्रीन करना चाहिए, और इसमें स्पेस डालनी चाहिए यस को। ठीक है ना, आप एक काम करोगे, आई विल एंड दिस हेयर, यू विल टेक द लैपटॉप एंड डू इट, फिक्स दिस, हाँ, क्योंकि मैंने असर भी नहीं पड़ी है एंड